The battle lines are drawn. Election Commission announces 2-month-long electoral battle, 19th of April onwards. Lok Sabha elections to be conducted in 7 phases across the country. Simultaneous polls in 4 states. Congress spins EVM theories minutes after EC briefing. Is this display of nervousness on the 2024 polls? OIC knocks the Supreme Court's door against implementation of CAA, repeats divisive and anti-minority theory. Big development in Liquorgate investigation. K. Kavita now sent to 7-day ED custody. Right. Good evening, viewers. You're watching the biggest story tonight. I'm Rakshita Mishra with you. And the Chief Election Commissioner of India, Rajiv Kumar, has announced a press conference in New Delhi that the Lok Sabha election 2024 will be held in 7 phases. The first notification will be on the 20th of March and the first phase of the polls will kick off on the 19th of April. Results for the polls will be out on the 4th of June. Let's take a listen in to the reactions coming in and what the CEC also said. Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और
हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। 4th फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13 May। Date of counting in the entire country would be 4th June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, Northeast would be complete। और 5th phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th June। इट विल लुक लाइक दिस, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll। phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th April and finishing on 25th May 2024। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th phase notification will be on 7th May and polling on 1st June। So last polling would be on 1st June and counting on 4th, and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। This is how the map will look। Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given। We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें। ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57। So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area। तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। So elections have been announced for the assemblies in 4 states, and National Conference has expressed disappointment, saying that simultaneous polls should have been held or should have been announced for Jammu Kashmir also. Farooq Abdullah says that the polls in Kashmir should not be delayed anymore. Take a listen in. Well, I feel sad. To the Chief Election Commissioner, I'll say, you have denied us the right of being part of this nation. We have every right as Indians to have our own government, not officers ruling this state. We need people who can lead this state forward. Officers don't have that will in them. So, not only I, but I think every political party and every person of Jammu and Kashmir must be feeling sad today. Security has been given a reason for denying the election by denying this. Then don't hold parliamentary election. If you think security is that bad, then why hold parliamentary election? If for parliamentary election your security is all right, why not for state election? You need the same force. 3 phase के बजाय आप 7 phase में करिए, कौन रोकता आपको? मगर they are not ready. So what are the hopes from the Lok Sabha polls? Because Inshallah, we will do well. We'll do well. Farooq, will you be contesting from Srinagar? That will be decided by the party in this week. They'll decide the names of the candidates. And if they decide that I should fight, at my age, I would say, please don't decide my name. But if they force me, then I can't say anything. But otherwise, I think I have done my bit.
So indirectly, you are saying that the another candidate will be. Anybody can be there. In National Conference hasn't got dearth of candidates. Inshallah, good candidates will be there. As far as Jammu and Kashmir was concerned, our primary concern has been assembly elections. We are without an elected government for the last 6 years. There has been no election for the last 10 years. I don't understand this logic of extending the elections across so many weeks. I mean, what is the point and what is the logic when you yourself are calling and you are justifying that we should have simultaneous elections on one single day? Then what is the point of dragging these elections? There is a proper gerrymandering has been done. We have been left high and dry. Our hopes have been dashed. And democracy has stopped at the gates of Lakhanpur. Now, even as days for 2024 were announced, Congress continues to fearmonger on the EVMs. Congress speculates on issues with EVMs. Adhir Ranjan Chaudhary said that there will be issues with the electronic voting machine, and he added that there have been instances where the Election Commission observers had failed to perform their duty. Take a listen in. नंबर सेट हमें करने की अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो 400 नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये अहंकार की एक प्रकाश है. अहंकारम बलम दर्पम, ये मोदी जी की सरकार की एक चेहरा होते हैं. आपका वोट, आपसे हम आशीर्वाद मांग सकते, दुआ मांग सकते, दया मांग सकते. आपका वोट मेरे जेब में रखे हुए कोई फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है, कोई पेटेंट तो नहीं है कि मैं कह देते हैं 400 सीट. तो इसीलिए ना आम लोगों के अंदर एक शंका पैदा होते जा रहे हैं कि बिना चुनाव होते हुए 400 पार कराना के मतलब क्या ईवीएम में कोई कार्रवाई होगी क्या? ईवीएम में कोई घोटाला होगी क्या? ये लोगों के अंदर एक शंका पैदा कर देते हैं सरकार की अहंग. लोग ये सोचने लगे हैं कि बिना चुनाव कैसे कह सकते हैं कि 400 पार कर देंगे. इसका मतलब है ईवीएम में छेड़छाड़ होगी क्या? बिना छेड़छाड़ ईवीएम, बिना चुनाव कैसे कह देते हैं? ये क्या इसके पास क्या तिलस्मी है? ये क्या जादूगर है? क्या है? 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं. चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है. हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है. क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस. कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है. कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस. कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया. अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया. फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया. अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है. कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीजें तो हमसे पूछिए. हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती. एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है. बार बार परिणाम आते हैं. कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है. और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है. आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे. वो कहाँ की डिग्री है, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए. वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है. उसमें से गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है.
वो धरना भी हो जाता है कि ये स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल। लेकिन भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन है। Now, the BJP has exuded confidence and said, and of course reiterated the slogan, Ab ki baar 400 par. Listen into the reactions coming in post the poll date announcement. भारतीय जनता पार्टी को 370+ और एनडीए को 400 पार सीट देश भर से सभी देंगे, ये मैं कहता हूं। और फिर एक बार माननीय मोदी सरकार इस देश में आ रहे हैं। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। वहीं कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी और अब तक के न्यूनतम वोट कांग्रेस को, न्यूनतम वोट भी और न्यूनतम सीट भी कांग्रेस को मिलेगी। And we're extremely confident this historic election in Tamil Nadu will truly be historic in the term that not only will BJP open its numbers in a big way, but also the number of votes that we get in Tamil Nadu will truly be path-breaking. उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी। वो उनको अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं, इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा। जी हाँ, 7 चरणों में देश का चुनाव होगा और मुझे खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने आज इसकी घोषणा कर दी है और 7 चरणों में चुनाव होगा। दिल्ली 6ठे चरण में होगा और जो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित किए हैं हम सब उसका पालन भी करेंगे। 2014-2019 में दिल्ली की जनता ने हमें भरपूर स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। निस्संदेह 2024 में भी हम जनता के आशीर्वाद से 7 सीटें जीतेंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। How prepared this time the BJP is during Lok Sabha election 2024? नहीं, हम प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी। हमारे 7 कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं। उन्होंने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। बूथ पर हमारा कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है। अब तो सिर्फ जनता का आशीर्वाद और जनता से जो स्नेह है उसके लिए 25 मई का इंतजार है। 7 सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। लोकसभा का आम चुनाव जिसके तिथि के ऐलान का पूरा देश इंतजार कर रहा था, चुनाव आयोग ने तिथियों का ऐलान कर दिया है। पहले चरण का मतदान जहां 19 अप्रैल को होगा, वहीं आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और 4 जून को मतों की गणना होगी। 4 जून को यूपी में सपा बसपा कांग्रेस 0-0-0। सर, पूरा 1.5 महीने तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी। 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। यह अनुमान था हो सकता है चरण कुछ कम हो, लेकिन हुआ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पसीना बहा रहे थे और हमको पसीना बहाना आता है। हम ट्विटर पे ट्वीट करके चुनाव नहीं लड़ते। हम केवल इवेंट कोई मैनेजमेंट करके चुनाव नहीं लड़ते। हम जनता के बीच में थे, जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में जाएंगे और डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के जाएंगे और विकसित भारत की गारंटी का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है, उनके नेतृत्व में देश उठ करके खड़ा है। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं। इसलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। तो आपका लक्ष्य 80 सीट यूपी में जीतने का, देश में 400 कैसे पूरा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर मजबूत तैयारी की है। हमारा संगठनात्मक तंत्र है, हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और विपक्ष नेता विहीन, नीति विहीन, नेतृत्व विहीन और पूरी तरह से इंडी गठबंधन अलग थलग पड़ गया है। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। बाकी विपक्षी दलों में भी सब लोग यह मान लिए हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। राहुल प्रियंका का नाम नहीं आ रहा है रायबरेली अमेठी से, देर हो रही है। कांग्रेस की समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं है। भाजपा अमेठी तो जीतने जा रही, रायबरेली भी जीतेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित हम चुनाव का स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। जिस ढंग से मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने देश की जनता को संबोधित किया है, सभी से अपील की है कि 100% मतदान की ओर बढ़ें, छुट्टियां न मनाएं और सब लोग एकजुट करके लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हों। उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश के सभी परिवारों का मानना है कि माननीय मोदी जी हमारे अभिभावक हैं। हम आज कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में मोदी जी की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेगी।